You know, there are some days when you are very low on energy. There are some days when our heart feels heavy, and there are some days when we don't even want to get up from our bed. Well, I'm talking about those bad days, those dark days of our life that leaves us completely in a lifeless and numb zone. And you know, as the Gen Z generation, dealing with these bad days have become an inevitable part of our life. अगर आप ये वीडियो भी देख रहे हो तो there are high chances कि either you have gone through these bad days in your past, or you are dealing with these bad days in your present, or you have to encounter these bad days in your future anyways. And इन बैड डेज के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, बहुत सारे इंसिडेंट्स के थ्रू ये हमारी लाइफ में एंटर हो सकते हैं. बट आपको पता है जो सबसे ऑब्वियस रीज़न है, द मोस्ट ऑब्वियस रीज़न दैट लीड टू दीज बैड डेज इन आवर लाइफ इज़ ऑफ कोर्स अ ब्रेकअप, अ हार्ट ब्रेक. व्हेन वी आर चीटेड अपॉन बाय समवन, व्हेन वी आर रिजेक्टेड बाय समवन, और वी आर लेफ्ट अपॉन बाय समवन जिस पे हम इमोशनली डिपेंडेंट थे और अपॉन whom we were emotionally relied. You know, जो हार्ट ब्रेक होता है ना, it squeezes all our energy, all our excitement, all our happiness, and it leaves us completely in a lifeless and dull zone. हमें किसी से मिलने का मन नहीं करता, हमें कुछ खाने का मन नहीं करता, हमें कुछ करने का मन नहीं करता, and all that we want to do is to just sit at one corner of our room and sulk upon that breakup, sulk upon that heavy heart. एंड यू नो, ऐसे टाइम पे हमारे माइंड में ना एक बहुत ही मेजर गिल्ट चल रही होती है. एंड आउट ऑफ दैट गिल्ट वी कंटिन्यूसली कीप टेलिंग आवरसेल्फ कि यार माई एंटायर लाइफ इज लाइंग इन फ्रंट ऑफ मी, माई करियर इज देयर अपॉन विच आई हैव टू वर्क अपॉन, माई पेरेंट्स हैव सेटल्ड देयर एक्सपेक्टेशंस ऑन मी, एंड मेरे खुद के लाइफ में गोल्स है जो मुझे अचीव करने हैं. एंड हेयर आई एम स्टक्ड इन टू दिस सिचुएशन डीलिंग विद दीज बैड डेज. मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, मेरे दिन पे दिन निकले जा रहे हैं. हाउ विल आई मूव ऑन फ्रॉम दिस सिचुएशन? एंड जब भी हम किसी के साथ ये अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हैं ना, तो एक बहुत ही ऑब्वियस रिप्लाई आता है, एंड दैट रिप्लाई इज ऑफ कोर्स टू मूव ऑन, टू फॉरगॉट द पास्ट, टू मूव ऑन अहेड इन लाइफ. बट बहुत कम लोग हमें एग्जैक्टली ये चीज़ बताते हैं कि हाउ टू मूव ऑन इन लाइफ, हाउ टू मूव ऑन फ्रॉम दीज बैड डेज, हाउ टू मूव ऑन वाइल कैरिंग द बैगेज ऑफ दैट हैवी हार्ट विद इन अस. यू नो, इस वीडियो में मैं आपके साथ एक बहुत ही प्रैक्टिकल सोल्यूशन शेयर करूँगा that is definitely going to help you recover and move on from your bad days. So make sure you are watching this video till the very end. You know, one thing which we all need to realize is that overcoming emotional pain, moving on from a broken heart requires time. Don't get harsh upon yourself. Treat yourself with love, treat yourself with care. And one more important thing, don't ever try to fight with that emotional pain. Don't try to fight with all those negative thoughts and anxiety. Because वो आपके सामने नहीं खड़ी है कि आप उससे फाइट करोगे और उससे जीत जाओगे. It's right there in your mind, within your memories, within your experiences. Instead, you know, try to embrace that emotional pain. And embracing that emotional pain doesn't mean कि to pretend fake happiness. It simply means you are willing to observe that pain. You are willing to feel that emotional pain as deep as you can. Because जितना आप उस emotional pain को feel करोगे ना, उतना ही आपका टॉलरेंस लेवल बढ़ेगा और उतना ही आप अंदर से और स्ट्रांग होते जाओगे. You know, just like it takes time to overcome physical pain, it will also take time to overcome mental pain, to overcome emotional pain. So give yourself some time. अगर आपको लगता है कि आपको एक हफ्ते की ब्रेक की ज़रूरत है, 2 हफ्ते की, 3 हफ्ते की, महीने भर की, 2 महीने की ब्रेक की ज़रूरत है, तो give yourself that break. Don't get harsh upon yourself. Now let's just imagine कि आपने 1 महीने का ब्रेक ले लिया, 2 महीने का ब्रेक ले लिया, 3 महीने का ब्रेक ले लिया. बट इस ब्रेक के बाद आपको अपने माइंड में खुद से क्वेश्चन पूछना है, एंड दैट क्वेश्चन वुड बी नाउ व्हाट. अब मुझे मेरी लाइफ में आगे क्या करना है? बिकॉज प्रैक्टिकली वी कांट सल्क ओवर दैट इमोशनल पेन, वी कांट सल्क ओवर दैट ब्रेकअप फॉर आवर एंटायर लाइफ. एंड मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो यू माइट बी फॉलोइंग अंडर द एज ग्रुप ऑफ 20 to 25 ईयर्स. एंड इस एज में हम सबके गोल्स होते हैं, हम सबकी लाइफ में एम्बिशंस होते हैं. तो जैसे आप ये क्वेश्चन खुद से पूछोगे ना, आपके माइंड में वो सारी चीज़ें आने लगेगी जो आपको लाइफ में अपने करनी है. इट कुड बी क्रैकिंग एन एग्जाम, इट कुड बी स्टार्टिंग समथिंग ऑफ योर ओन, इट कुड बी फॉलोइंग योर पैशन, इट कुड बी अर्निंग मनी, इट कुड बी फुलफिलिंग योर पेरेंट्स एक्सपेक्टेशंस और एनी अदर XYZ थिंग विच यू वांट टू डू इन योर लाइफ. और आपको वो सारी चीज़ें एक लिस्ट पे नोट डाउन कर लेनी है. एंड फ्रॉम द वेरी नेक्स्ट डे ऑनवर्ड्स start working towards those things. Start taking baby steps, very very small steps towards accomplishing all those goals in your life. आपको हर दिन एक रूल खुद के लिए सेट करना है
कि every day you are selecting 3 to 4 works and you have to ensure कि by the end of that day you are completing all those works anyhow. Just make sure कि वो जो काम आप खुद के लिए सिलेक्ट कर रहे हो they should be less of focus oriented and should demand more of your physical engagement. It simply means कि जो काम आप कर रहे हो उनमें आपका फोकस और कॉन्सेंट्रेशन थोड़ा सा कम रिक्वायर्ड होना चाहिए एंड इट शुड डिमांड मोर ऑफ योर फिजिकल एंगेजमेंट. बिकॉज ऐसे टाइम पे हमारे माइंड में बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स आएंगे, बहुत ज़्यादा हमारे माइंड में कंटिन्यूसली रेपिटेटिव थॉट्स आएंगे और हमारा माइंड बहुत ज़्यादा फक्ड अप रहेगा ऐसे टाइम पे. तो अगर आप कोई ऐसा काम करोगे जिसमें बहुत ज़्यादा फोकस रिक्वायर्ड होगा तो ना ही वो आपका काम अच्छे से हो पाएगा और आपकी माइंड की एंग्जाइटी लेवल्स और बढ़ जाएंगे. बट आप कोई अगर ऐसा काम करोगे जिसमें आपका फिजिकल एंगेजमेंट ज़्यादा मैटर कर रहा होगा, तो अगर आपका थोड़ा बहुत माइंड नम भी हो रहा होगा ना, तो इट वुडंट बी अ मेजर इशू एंड आपका काम चलते रहेगा. बट यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि ये काम करने से, ये सब चीज़ें करने से ना ही आपका इमोशनल पेन कम होगा और ना ही आपका मेंटल बैगेज कम होगा. You have to work upon your goals. You have to take baby steps still while carrying the baggage of that heavy heart and that emotional pain within you. Actually, this is the most hardest and difficult part of moving on. And ये सारे काम खत्म करने के बाद रात को ना आपको खुद के साथ अकेले बैठना है, without any phone, without any electronic device, without any disturbance, without any interruption. आपके माइंड में वो मेमोरीज आएगी, आपके माइंड में ना वो इमोशनल पेन फिर से आएगा, आपके माइंड में थोड़ी बहुत एंग्जाइटी वापस आएगी. बट डोंट ट्राई टू अवॉइड इट. उससे लड़ने की कोशिश बिल्कुल मत करना, बिकॉज इफ़ यू विल ट्राई टू फाइट विद दैट एंग्जाइटी वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी. इंस्टेड फील दैट इमोशनल पेन एज डीप एज यू कैन. उन मेमोरीज़ को आने दो, उन थॉट्स को आने दो. इफ़ यू फील लाइक क्राइंग देन क्राई. आपके आंसुओं का हिसाब कोई भी नहीं ले रहा है. बट यू नो दिस टाइम you will cry with a sense of accomplishment, with a sense of pride, with a sense of happiness. आप खुद को ये चीज़ कंटिन्यूसली बोलोगे कि यार आई एम गोइंग थ्रू वन ऑफ द हार्डेस्ट फेजेस ऑफ माई लाइफ एंड स्टिल आई एम पुशिंग माई बाउंड्रीज, आई एम पुशिंग माई लिमिटेशंस, आई एम कंप्लीटिंग ऑल माई वर्क्स, आई एम फुलफिलिंग माई रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आई एम नॉट गिविंग अप अपॉन लाइफ. एंड ये चीज़ आपको अंदर से मोटिवेशन देगी, आपको अंदर से एक हैप्पीनेस देगी. ऐसे टाइम पे ना आपको खुद को एक चीज़ कंटिन्यूसली रिमाइंड करवानी है कि it is better to cry with a sense of pride, with a sense of accomplishment, rather to cry with a sense of guilt, with a sense of regret. तो एक्चुअली में ना मूव ऑन करने का सबसे जो प्रैक्टिकल सोल्यूशन है ना वो यही है कि आप अपने इमोशनल पेन और अपने लाइफ की ड्यूटीज़, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अपने सारे काम को साथ में लेके चल रहे हो. बिकॉज अगर आप एक चीज़ को भी इनमें से पीछे छोड़ दोगे ना तो आगे चीज़ें और ज़्यादा आपके लिए डिफ़िकल्ट होती रहेगी. यू हैव टू move on in life, you have to look forward in life, you have to move forward in life while carrying both these things together, your emotional pain as well as your duties and responsibilities. So that's it from my side. I hope this thing will definitely going to help you to recover from your bad days, to move on from that emotional pain, from that heartbreak. I'll see you next time very soon.